اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے اور میرے فیملی چینل کے ممبرز جو مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں، اپنے ویوز بھی اچھے دیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن بس مجھے شکوہ تو نہیں ہے، نہ میرا حق ہے شکوہ کرنے کا، لیکن ایز اے ممبر میں آپ سے یہ ضرور گلہ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لائک کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، حاتم طائی کی طرح جو ہے نا زندہ دل ہیں اور اپنا ٹائم دینے کے بعد جو ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی آپ کی مجبوری ہو۔ نمبر 2، آپ لوگوں کے توسط سے اور 2-3 ہمارے ممبرس بنے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ اپنے صحیح چینل میں آ گئے ہیں، صحیح فیملی میں آ گئے ہیں۔ یہ اصل فیملی ان کی یہی تھی، لیکن وہ مجھ سے کھوئے ہوئے تھے، آخر ہم جو ہے وہ مل گئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ عالم ارواح میں جن جن لوگوں نے اس وقت ملاقات کی تھی کہ جب دنیا وجود میں نہیں آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے دنیا میں جانا ہے، تو جن جن روحوں کی وہاں ملاقات ہوئی تھی، ان روحوں نے اس دنیا میں ضرور ملنا ایک دوسرے سے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا، میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا، تو ہماری شناسائی کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ شناسائی صدیوں پہ محیط ہے۔ تو کوئی اب آپ کو تذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی غلط چینل کا انتخاب کر بیٹھے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو کرنٹ افیئر میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ بانی چیئرمین نے آرمی چیف سے یہ کہا کہ اوپن ٹرائل کریں فیض حمید صاحب کا۔ ان کی طرف سے یہ جواب گیا سیکورٹی والوں کی طرف سے کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ ایڈوائز کرنے والے کہ ہم ان کا اوپن ٹرائل کریں یا نہ کریں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اتنا یقین دلا دیتے ہیں کہ جب آپ کا ٹرائل کریں گے تو وہ اوپن ٹرائل کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے نو منتخب وزیر اعظم جو تھے برطانیہ کے، ان سے بھی درخواست کی تھی کہ مجھے جو ہے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور آپ میری مدد کریں۔ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ جن سے آزادی مانگ رہے تھے۔ آج مجھے وہ یوتھ بتائے کہ وہ یوتھ کہاں کھڑی ہے۔ ہمارا وہ صوبہ KPK کا اتنا مشہور تھا اس معاملے میں کہ جس حکومت کو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں دوبارہ اس کو ووٹ نہیں دیتے، لیکن اتنا وہاں پہ بگاڑ پیدا کر دیا کہ یہ تیسری حکومت جو ہے نا ان کی جا رہی ہے، اور 13واں سال غالباً جو ہے ان کو جا رہا ہے، لیکن وہاں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنی یوتھ سے آج بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں اور ملک کے لیے نام روشن کریں، اور آپ کا نام بلند ہو ذاتی طور پہ بھی۔ ایک یہ تو بدنصیب شخص تھا کہ ہیرو تھا قوم کا، ورلڈ کپ جیتا 10-11 کھلاڑیوں کے ساتھ مل کے، اکیلے نے نہیں جیتا، لیکن کیونکہ ایک کیپٹن تھے تو کیپٹن کو ہی انعام ملنا تھا۔ وہاں سے نکل کے اس کیچڑ میں آ کے پھنس گیا کہ جو ایک دلدل ہے یہ سیاست جو ہے، اور اس کے اندر آ کے نہ صرف پھنسا بلکہ وہاں پہ آ کے پھر اس نے ایسے سہارے ڈھونڈے کہ جو تنکے والے سہارے تھے، کہ اب اس کو وہ سہارے بھی جو ہے نا نہیں مل رہے ہیں۔ تو یہ عدالتیں جو اس وقت چل رہی ہیں، ٹرائل کر رہی ہیں ملٹری کے اندر، ان عدالتوں میں ان کا کیس بھی جائے گا، اور وہ مرشدنی کہ جس کے بارے میں سارے لوگ مرشد ہوتے جا رہے تھے، پتہ چل گیا ان مرشدنی کا کہ وہ کہاں تھیں، وہ تو صرف پیسے کے لالچ میں تھیں، ان کی چیزیں وہیں پہ کام کرتی تھیں، ان کو اطلاع جو تھی فیض حمید کے ذریعے ملتی تھی، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کرتی تھیں کہ جی فلاں کو وزیر اعلیٰ بنا دو، فلاں کو جو ہے نا وزیر بنا دو، اور اس کے بعد فرا گوگی کے ساتھ مل کے جتنا پاکستان کو لوٹ سکتے تھے، جتنی کرپشن کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی۔ آج شوکت خانم کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں کہ اس میں چندہ دیا جائے، وہ بھی چندہ صرف اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ اس پیسے کو بھی یہاں پہ یوٹیلائز کیا جائے، کیونکہ یہ جو فائر وائل بنی ہے اس کے بعد سے ان کا اور فیض حمید کے بند ہونے کی وجہ سے فنڈز کی بہت زیادہ کمی ان کے پاس ہو گئی ہے۔
لیکن اللہ کے ہاں عدالتوں میں جواب دینا ہے۔ تو ہم نے کل جو گفتگو کر رہے تھے ہم اپنی، وہ بھی اسی حوالے سے کر رہے تھے کہ انسان مرنے کے بعد بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو واپس آ جاتے ہیں، اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آج جو ہے نا میں نے زخمی سے پروگرام شروع کرنا ہے، تو اس کا اگلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں کہ فوجی مہم کامیاب رہی تھی، ہمارے کچھ مجاہدین نے ضرور جام شہادت نوش کیا، لیکن سپاہی پاسداران کو سرحدی علاقے کی ساری چوٹیاں دہشت گرد ٹولے پزاک، یہ نام ہے اس گروپ کا، اس کے ناپاک عزائم اور وجود سے پاک کرنے میں کامیابی ملی تھی۔ میں نے بھی اس فوجی آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ سالوں بعد ایک واقعی فوجی مہم میں شرکت کر کے ایک روحانی لذت و سکون محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے دوستوں کی مانند شہادت کی آرزو تھی، لیکن اس حقیقت کا ادراک کہاں تھا، اور کہاں شہادت کا رتبہ، اور کہاں میں جوانی کے دنوں کا جذبہ فداکاری اور شوق شہادت اب بجھتے چراغ کی مانند مدھم پڑتا جا رہا تھا۔ اس فوجی مہم کے دوران فضائی آلودگی اور گرد و غبار کی وجہ سے میری آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا تھا۔ ہوا کی آلودگی کے سبب آنکھوں میں شدید جلن اور غیر معمولی تکلیف تھی۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، چیک اپ کیا اور کچھ قطرے دیے، کہا تھوڑی دیر بعد افاقہ ہو جائے گا، لیکن گھنٹوں گزرنے کے باوجود کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اب اس آپریشن کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کامیاب آپریشن کے نتیجے میں یہ علاقہ اب امن و امان کا گہوارہ بن چکا تھا، لیکن میری آنکھوں کی تکلیف اپنی جگہ پر باقی تھی۔ اصل تکلیف میری بائیں آنکھ میں تھی، اور میں نے 3 سال اسی درد کے ساتھ دن رات گزارے۔ ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، لیکن درد بڑھتا گیا۔ جو دوا کی، درد نے میری زندگی سے آرام و سکون چھین لیا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک دن صبح کے وقت میں نے محسوس کیا کہ میری بائیں آنکھ حلقے سے باہر آ گئی ہے۔ میں نے بدحواسی میں آئینے کے سامنے جا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ میری آنکھ کاسے چشم سے باہر لٹک رہی تھی، یعنی آنکھ جو تھی وہ نکل کے باہر لٹک رہی تھی۔ میری ذہنی حالت زار ایک طرف اور شدید درد نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ اسی دن اسپتال چلا گیا اور ڈاکٹروں سے آنکھوں کی سرجری کی التجا کرتا رہا۔ میں نے کہا میرا درد میری شدت سے باہر ہے۔ میرے اصرار کی بنا پر ڈاکٹروں کا ایک پینل تشکیل دیا گیا۔ ایکس رے کے بعد کئی ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹروں کے پینل میں ایک ڈاکٹر آنکھوں کا اسپیشلسٹ اور دوسرا دماغ کا سرجن تھا۔ تفصیلی چیک اپ کے بعد ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ آنکھ کے پیچھے ایک بڑا پھوڑا یعنی ٹیومر ہے۔ اس پھوڑے کے دباؤ کی وجہ سے آنکھ کا جو کاسا ہے، جو آنکھ ہے، وہ باہر نکل آئی ہے۔ دوسری جانب یہ پھوڑا پیچھے سے دماغ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور سرجری کے نتیجے میں اس کو نکالنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ آپریشن کی صورت میں یا آنکھ کے جانے کا خطرہ تھا، یا پھر دماغ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ میڈیکل ٹیم نے آپریشن میں 60% سے زیادہ خطرے کی پیشن گوئی کی تھی۔ میں نے ڈاکٹروں سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، خدا را میرا آپریشن کریں۔ بالآخر تہران کا ایک ڈاکٹر میڈیکل ٹیم کا حصہ بن گیا، جس کے بعد یہ طے ہوا کہ آنکھ کی اوپر والی ہڈی کا آپریشن کیا جائے اور اسے کاٹا جائے، پھر آنکھ کے پشت پر موجود پھوڑے کا آپریشن کر کے اسے نکالا جائے۔ وہ 2015 کا موسم بہار تھا۔ اصفہان کے ایک اسپتال میں میری آنکھ کا آپریشن ہوا۔ آپریشن 6 گھنٹے تک جاری رہا۔ آپریشن سے پہلے سرجن ٹیم بار بار میرے ساتھ والوں سے اور مجھ سے کہتی رہی تھی کہ یہ آپریشن بہت خطرناک ہے۔ ٹیومر چونکہ آنکھ اور دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا سرجری میں خطرہ ہے کہ دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا پھر آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، لہٰذا آپریشن کی کامیابی کا امکان بہت کم ہے، اور یہ آپریشن صرف بیمار کے اصرار پر کیا جا رہا ہے۔ میں نے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے خدا حافظی کی کہ اللہ حافظ۔ میری بیگم حاملہ تھی، وہ بیماری کے ایام میں میرے ساتھ تیمارداری میں مصروف رہی اور مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ آخر میں ان سے بھی رخصت ہوا، سب سے بخشش طلب کی اور اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے وقت ایسا محسوس ہوا کہ اس کمرے سے واپسی کا کوئی راستہ
नहीं निकलता। सर्जरी टीम ने बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम शुरू किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की गोद में सो गया। फिर ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो गया। यानी ऑपरेशन बहुत देर तक चलता रहा क्योंकि फोड़े को निकालने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। डॉक्टर सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोड़ा भी अपनी ताकत का फुल मुजाहरा कर रहा था। डॉक्टरों ने कोशिश का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और वो सब कुछ हो गया जिसका किसी को इंतज़ार नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने अपना काफ़ी काम महारत से अंजाम दिया है और मैं ठीक हो गया हूँ। मैं हल्का और पुरसुकून हो गया था। ऐसा खूबसूरत एहसास कि जिसकी तौसीफ़ मुमकिन नहीं है। दर्द व तकलीफ़ मेरे वजूद से कोसों दूर जा चुकी थी। सुकून ने मेरे वजूद को घेर लिया था और मैं आज़ाद हो गया था। खुदाया तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने सर और आँखों के दर्द से मुझे निजात दी। कितना अच्छा ऑपरेशन हुआ। उन्होंने दर्जनों किस्म की तारें और मशीनें मेरे सर और चेहरे पर लगा रखी थीं, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन बेड से उठकर बैठ गया। मैंने माँ की गोद से लेकर अस्पताल में दाखिल होने तक सारा गुजरा हुआ ज़माना एक लम्हे में देख लिया। ये सारा ज़माना मेरे सामने अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ मौजूद था। मेरा वजूद खुशियों और मसरतों से भर गया था और एक ही लम्हे में अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने सारे अमाल को देख लिया था कि इसी दौरान मैंने देखा कि एक सफ़ेद और नूरानी लिबास में मलबूस एक खूबसूरत जवान मेरे दाएं जानिब खड़ा है। वो कितना हसीन और खूबरू था। इसकी रानाई ने मुझे अपने शहर में गिरफ़्तार कर लिया था। मेरा जी चाहता था कि मैं इसके हम आगोश हो जाऊं, इससे चिमट जाऊं। वो मेरे सामने खड़ा रहा, मेरे चेहरे को देखकर मुस्करा रहा था। इसके चेहरे से मेरी नज़रें हटने का नाम नहीं ले रही थीं। सोचता रहा, ये तो हुस्न का बहता दरिया है, इसकी दिलकशी का क्या राज है। इसका चेहरा आशना था और मैंने इसको इससे पहले भी कहीं देखा था। बाएं समत में निगाह की तो देखा मेरा कज़न, मेरे दादा और दूसरे लोग खड़े थे। मेरे चचा तो मुझसे पहले ही दुनिया से जा चुके थे। मेरे चचाजाद भाई तो 8 साल ईरान इराक जंग में शहीद हो चुके थे। बरसों बाद उनको देख रहा था और मेरी खुशी काबिले दीद थी। कनखियों से सीधे हाथ में खड़े जवान को दोबारा देखा। वो हुस्न का तराशा हुआ पैकर था और मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि इसको मैंने कहाँ देखा है। एकदम मुझे याद आया, तकरीबन 25 साल पहले मशहद मुक़द्दस जाने से पहले ख्वाब में उसकी ज़ियारत की थी। हाँ, ये तो जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम है। मैंने अदब से सलाम किया। जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैं इसकी हुस्न और दिलकशी में खो गया था कि इसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि चलें। हैरत का मुजस्सम बनकर मैंने पूछ लिया, कहाँ चलें। एक दफ़ा अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। सर्जन ने अपने चेहरे से मास्क उतार दिया और अपने साथी सर्जनों से मुखातिब होकर कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं, वो जा चुका है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज़ की हिम्मत जवाब दे गई थी। एक डॉक्टर कहने लगा, शॉक डिवाइस लेकर आओ, करंट वाली जो होती है। मैंने ऑपरेशन रूम का जायज़ा लिया तो मॉनिटर और दूसरे मेडिकल डिवाइसेस अपना काम छोड़ चुके थे। ये तो बहुत अजीब बात थी कि सर्जन डॉक्टर मेरी जानिब पुष्ट करके खड़ा था, लेकिन मैं इसका चेहरा भी देख रहा था। यही नहीं, मैं और इसके फ़िक्र ख्याल को भी पढ़ रहा था। और तो और कमरे में मौजूद अफराद क्या सोच रहे हैं ये भी मुझे पता चल रहा था। इसी लम्हे ऑपरेशन थिएटर से बाहर नज़र पड़ी। मैं दरवाजे की जानिब भी देख सकता था। मेरा भाई दरवाजे के बाहर बैठा था। वह हाथ में तस्वीर लेकर जिक्र में मशगूल था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो क्या पढ़ रहा था। मैं तो उसके ज़हनों ख़यालात को भी पढ़ रहा था। वो गुनगुना रहा था, ए खुदावंदा मेरे भाई को लौटा दे, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तीसरे बच्चे की पैदाइश अनकरीब है। अगर वो मर गया तो इसके बच्चे का क्या बनेगा, हम इनका क्या करेंगे। यानी वो परेशान था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। दूसरी जानिब हॉस्पिटल के एक और कमरे में एक बंदा खुदा मेरे बारे में खुदा से दुआ मांग रहा था। मैं इनको भी देख रहा था और एक कमरे में एक जंगी माजूर बेड पर पड़ा हुआ था और खुदा से मेरी शफा के लिए दुआ मांग रहा था। इनको भी मैं जानता था। ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होते वक्त
इनसे मिला था, खुदा हाफिज़ी की थी। मैंने कहा था कि शायद वापस लौटना नसीब ना हो। वो माजूर खुलूस के साथ बारगाह अक़दस में दस्त बदुआ था कि ए खुदावंद करीम, मुझे मौत दे दे लेकिन इसको शिफा इनायत कर दे, क्योंकि इसके बीवी बच्चे हैं और मेरा कोई नहीं है। मुझे महसूस हुआ कि मैं सारे लोगों के बातिन से आगाह हूँ, इनकी नीयतों को पढ़ सकता हूँ, इनके अमाल का मुशाहिदा कर सकता हूँ। वो हुस्न का पैकर जवान एक दफ़ा फिर मुझसे कहने लगा, चलें। मैं इस सूरत हाल से बहुत खुश था। न दर्द का कोई निशान, न गम की कोई अलामत। ये तो मैं समझ गया था कि सूरत हाल बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने इनकार किया। लेकिन ये बात समझने में देर नहीं लगी कि वो मेरी मौत की बात कर रहा है और मुझे दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए आया था। मैंने अपनी फुफीज़ाद भाई की जानिब इशारा किया और इनसे कहा, मुझे शहादत की तमन्ना है। मैं ज़िंदगी जहाद और शहादत की तमन्ना में गुजार रहा था, अब कैसे इस हालत में और इस मौत के साथ चला जाऊं। लेकिन मेरे इसरार करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि वो जो कुछ बोल रहा था किसी को सुनाई नहीं दे रहा था और मेरे लिए जाने के सिवा कोई चारा न था। इसी लम्हे दो और जवान मेरी तरफ ज़ाहिर हुए और कहने लगे, चलें। मैं बेख्तियार इनके साथ चल पड़ा। भी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ख़ुद को इन दोनों के साथ एक बयाबान में पाया। एक जंगल था, एक सहरा था। ये बात भी बताता चलूँ कि वहाँ वक्त इस दुनिया की मानिंद नहीं है। मैं एक लम्हे में हज़ारों मसाइल को समझ सकता था और हज़ारों लोगों को देख सकता था। उस वक्त मुझे यकीन था कि मैं मौत की आगोश में हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आँखों की तकलीफ़ का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था और मेरे चचा का लड़का मेरे साथ खड़ा था। कितना सुकून था। रिवायत में पढ़ा था कि खुदावंद करीम की जानिब से दो फरिश्ते करामन कातिबीन जो हैं वो हमेशा इंसान के साथ रहते हैं और आज दोनों को मैं अपनी आंखों से देख रहा था। ये दोनों कितने खूबसूरत और खूबरू थे। मेरी तमन्ना थी कि हमेशा इनके साथ रहूं। हमें खुश्क सहरा से गुजर रहे थे। यहाँ तो घास फूस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। गौर से देखा तो कुछ फासले पर एक चीज़ थी। सामने एक मेज़ पड़ी थी और उसके पीछे एक आदमी बैठा था। हम आहिस्ता आहिस्ता मेज़ की जानिब बढ़ रहे थे। मैंने दाएं बाएं देखा तो उल्टी सिमत में बहुत दूर शराब की मानिंद कोई चीज़ नज़र आ रही थी। गौर से देखने पर पता चला कि कोई शराब वराब नहीं है, बल्कि वहाँ पर आग भड़क रही थी। इसकी तपिश बहुत दूर से महसूस हो रही थी। उसके ऊपर जो लहरें आती हैं ना जब आग जलती है, तो वो दूर से ऐसा लगता है कि जैसे पानी है, शराब है, धोखा है, और उसकी तपिश बहुत दूर दूर तक महसूस हो रही थी। दाएं जानिब देखा तो बहुत दूर एक बाग नज़र आया। ईरान के शुमाल में मौजूद जंगल जैसा मंजर था। वहाँ से ठंडी हवाओं की खुनकी महसूस कर रहा था। मेज़ के पीछे बैठे आदमी को सलाम किया। उसने अदब से सलाम का जवाब दिया। इनकी तरफ देखता रहा कि इनको मुझसे क्या काम है। मेरे साथ खड़े दोनों जवान साकित खड़े थे। मैं था और वो मेरे साथ खड़े थे, ये दो जवान। मेज़ के पीछे बैठे जवान ने एक बड़ी और ज़ख़ीम मोटी किताब मेरे सामने रख दी। अब हिसाब किताब कि मेज़ के पीछे बैठे जवान ने इस मोटी किताब की जानिब इशारा किया। मेरी हैरत देखकर कहने लगा, ये तुम्हारी अपनी किताब नामा अमाल है, इसको पढ़ो, आज रोज़े हिसाब है, खुद ही पढ़ लो, सब कुछ पता चल जाएगा। ये जुमला मेरे लिए नया नहीं था, बल्कि पहले भी मैं सुन चुका था। हमारे उस्ताद ने एक कुरानी जलसे में इस आयत की जानिब इशारा किया था कि इक़रा किताब का कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। अब अपनी किताब नामा आमाल को पढ़ लो, आज तुम्हारे हिसाब के लिए यही किताब काफ़ी है। सूरह इसरा आयत नंबर 14। इस जवान ने कुरान करीम की इस आयत का तर्जुमा मुझे सुनाया। मैंने दाएं बाएं देखा, थोड़ा सा रुका और फिर किताब को खोला। पहले सफ़े के बिल्कुल ऊपर बाएं जानिब मोटे ख़त में लिखा था 13 साल 6 महीने और 4 दिन। जो साहब मैं इसके पीछे बैठे थे, इनसे मैंने सवाल किया कि इस अदद का क्या मतलब है। कहने लगे, तुम्हारे बालिग होने की उम्र लिखी है, इस उम्र में तुम बालिग हो गए थे। ये बात मेरे जहन में आई कि ये 15 साल से कम उम्र है। इस जवान ने मेरे जहन को पढ़ लिया था। कहने लगा कि बलूग की निशानी वही एक नहीं है जो तुम्हारे जहन में है। मैं भी तस्लीम हो गया। इस सफ़े से
पहले दाएं जानिब मेरे अच्छे अमाल की एक लंबी फहरिस्त मौजूद थी। मस्जिद मुक़द्दस की ज़ियारत, नमाज अव्वल वक्त, अज़ादारी, हुकूक़ बंदगी, वालिदैन का एहतराम वग़ैरह वग़ैरह। मैंने पूछा ये क्या है? कहा ये तुम्हारे नेक अमाल हैं जो तुमने बालिग होने से पहले अंजाम दिए हैं। ये सारे अमाल तुम्हारे लिए हिफाजत के साथ रखे गए हैं। आप लोगों से भी मेरे लिए भी ये गुजारिश है कि जो हमारे बच्चे अभी नाबालिग हैं उनको ये तालीम दी जाए कि ये इनके जवानी में बलूगत के बाद इनकी ये नेकियां काम आ सकती हैं बहुत ज़्यादा, और वो भी जमा होती हैं, लेकिन क्योंकि वो गुनाह कर सकने के काबिल नहीं होते हैं तो वो जमा होती रहती हैं। किताब का सफ़ा पलटता जा रहा था कि बलूगत के बाद वाले अमाल का मुशाहिदा करूं, लेकिन मेज़ के पीछे बैठे जवान ने एक निगाह में किताब का जायज़ा लेने के बाद कहा, तुम्हारी नमाज़ों का कोई मसला नहीं है, वो सब कबूल है, चलो बाकी अमाल का जायज़ा लेते हैं। मुझे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आई कि खुदावंद आलम ने सबसे पहले मेरी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। खुदा की बारगाह में सबसे पहले 5 वक्त की नमाज़ पहुँचती है। मेरी उम्मत से सबसे पहले 5 वक्त की नमाज का हिसाब किताब लिया जाएगा। मैंने सने बलूग से पहले ही नमाज़ पढ़ने की आदत डाली थी और माँ बाप की हौसला अफजाई की वजह से हमेशा मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था। शायद एक आध बार ही मेरी सुबह की नमाज क़ज़ा हुई हो। अगर खुदा न खास्ता नमाज सुबह क़ज़ा हो जाती तो पूरा दिन परेशानी और अस्तराबी में गुजरता था। नमाज की मंजिलत का बचपन से एहसास था और इस बात पर खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ कि नमाज को अहमियत देता था। मेज़ के पीछे बैठे उस जवान यानी फरिश्ते के उस रवैये से पता चलता था कि नमाज की क्या कदर व मंजिलत है। लिहाजा सबसे पहले नमाज के बारे में पूछगछ की। इससे मुझे आइम्मा मासूमिन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस याद आई कि क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज कबूल हुई तो दूसरे अमाल भी कबूल हो जाएंगे, और अगर नमाज को ठुकरा दे गया तो फिर वावेला है। मेरी खुशी काबिल दीद थी। किताब का जायज़ा लेना शुरू किया तो देखा इसमें मेरी बलूगत के बाद का एक एक अमल लिखा गया था। छोटे से छोटा अमल, चाहे अच्छा हो या बुरा, सब कुछ लिखा हुआ था। ज़र्रा बराबर अमल से भी गफलत नहीं बरती गई थी। अब मेरी समझ में आया कि फ़मन यअमलु मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमलु मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा का क्या मतलब था और क्या मतलब है। हमने तो यहाँ मजाक किया था, लेकिन कलम ने इसको किताब के सीने में महफूज कर दिया था। उन्होंने हर चीज़ को संजीदगी से नोट कर रखा था। इस किताब में मेरे रोज़ाना के अफ़आल के किनारे एक छोटी सी तस्वीर मौजूद थी। इस तस्वीर को गौर से देखने के बाद वो फिल्म की मानिंद चलती रही। नए मोबाइलों में इस तरह की सहूलियात होती हैं। मैंने वो वीडियो देखी, 3D वीडियो थी, मुकम्मल तफसीलात के साथ दूसरों का सामना करते हुए इनके अफकार को भी देख सकता था। लिहाजा किसी भी फेल से इनकार मुमकिन नहीं था। अमाल तो अपनी जगह, हमारी नीयत भी इसमें लिखी गई थी। उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी और एतराज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सब कुछ सामने था, चूँ चरा की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मैं खुश था क्योंकि बाबा के साथ हमेशा मस्जिद और इमाम बारगाह और अच्छी जगहों पे जाया करता था। इस बाबत मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा था और अभी से जन्नत के बेहतरीन दर्जात में अपना मकाम देख रहा था। पहले सफ़े के अमाल को देख रहा था, अपने नेक अमाल पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। ऐसे में अचानक देखता हूँ कि मेरा एक अमल, एक नेक अमल आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो गया। तवज्जो कीजिएगा, इससे पहले सारा सफ़ा नेकी अमाल से भरा हुआ था, लेकिन अब कोरा कागज़ बन चुका था। मैंने गुस्से की हालत में मेज़ के पीछे बैठे नौजवान से पूछा, मेरे अमाल कहाँ गए? क्या ये सारे मेरे अमाल नहीं थे? तो फिर नाबूद कैसे हो गए? उसने शाइस्तगी से कहा, जी हाँ, ये नेक काम आप ही ने अंजाम दिए थे, लेकिन उस दिन तुमने दोस्त की गीबत की थी। तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारे उसी दोस्त के नाम में मुंतकिल हो चुके हैं। अंदाज़ा लगाएं, अहद कर लें कि आज के बाद गीबत नहीं करनी है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैंने पूछा, मुझे बताओ आखिर सारे अमाल क्यों? इसने भी बिला वास्ता पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का हवाला दिया कि जिस तरह तेज़ी के साथ आग
खुश्क घास को खा जाती है, इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ गीबत इंसान के नेक अमाल को नाबूद कर देती है। दूसरा सफ़ा खोला, वो भी अच्छे अमाल से भरा था। अव्वल वक्त की नमाज, मस्जिद और अज़ादारी, माँ बाप की रजामंदी वगैरह वगैरह। मेरे अमाल की वीडियो भी मौजूद थी, लेकिन देखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सारे अमाल पर कबूलियत की मोहर लगी हुई थी। वो ईरान इराक जंग का मुक़द्दस दौर था। अच्छे अमल की तादाद बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे अच्छे काम भूल चुका था, लेकिन यहाँ हर एक याद दिलाया गया। यहाँ भी हैरत का पैकर बनकर सवालिया निशान बन गया मैं कि मेरे अमाल आहिस्ता आहिस्ता फिर घट रहे हैं। पूछा अब क्या क्यों ऐसा हो रहा है? उस दिन तो मैंने किसी की गीबत भी नहीं की थी। जवान ने जवाब दिया कि एक दीनदार दोस्त का मजाक उड़ाया था। ये नापसंद अमल तुम्हारे अमाल की नाबूदी का बाइस बने हैं। मैं खामोश हो गया, लेकिन मुझे सूरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 30वीं आयत की जानिब तवज्जो दिलाई गई कि क़यामत का दिन मजाक उड़ाने वालों के लिए हसरत व यास का दिन होगा। ज़रा आप लोग सोचें कि हमारे जितने भी सियासी जलसे हैं या मजहबी जलसे हैं, उनमें कितना मजाक उड़ाया जाता है, कैसे नाम बदले जाते हैं और फिर किस तरह अवाम उनके पीछे लगती है। सब के सब इस गुनाह में शरीक हो जाते हैं और अपने नामा अमाल में अगर कोई नेकियां होती हैं वो दूसरों के नाम पे कर दी जाती हैं। तो उसमें ये फरमाया गया था, ऐसे बंदों पर अफसोस कि कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया कि जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। मैं अच्छी तरह जानता था कि किस जानिब इशारा है। मैं बहुत ज़्यादा शौक़ तबा और अहले मज़ाह था। मैं बता चुका था पहले कल कि उसमें दोस्तों के साथ मजाक करता था। अपने आप से कहने लगा, अफसोस तुम पर, अगर बात यह है तो मेरा क्या होगा। किताब का एक और वर्क पलटा। नेक अमाल की लंबी फहरिस्त थी और कोई अमल नाबूद नहीं हुआ। उस दिन भी मैंने बहुत हंसी मजाक किया था, दोस्तों के साथ बातें की, हंसते रहे, खेलते रहे, लेकिन किसी की तौहीन नहीं की थी, किसी की गीबत नहीं की थी। मेरी हंसी मजाक तौहीन से खाली थी, लिहाजा इसको भी नेक अमाल में लिखा गया। खुदा का शुक्र बजा लाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस याद आई कि मोमिन भाई का दिल शाद करना नमाज के बाद सबसे अफजल अमल है, लेकिन इसमें गुनाह से बचना चाहिए। खुशी खुशी दूसरे सफ़े को देखना शुरू किया। मेरी हैरत का उस वक्त कोई ठिकाना ना रहा जब अपने नामा आमाल में हज का सवाब भी लिखा हुआ देखा। मेज़ के पीछे बैठे जवान को देखा और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, जनाब ये हज कैसा? मैं जवानी के अय्याम में मक्का गया ही नहीं था। कहने लगे, तुम्हारे नामा आमाल में हज का सवाब लिखा गया है। कुछ अमाल ऐसे हैं कि जिनका सवाब कई हज के बराबर है। मिसाल के तौर पर अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखना, या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम या अइम्मा अलैहिस्सलाम की बामार्फत ज़ियारत करना वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्या, सारे अमाल एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता महव हो रहे थे, कम हो रहे थे। अब सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद भी देख सकता था। रात सारे दोस्त इकट्ठे हो गए थे और अपने ही एक दोस्त को सताना शुरू कर दिया था। सूरह ज़मर की आयत मेरे सामने थी कि इंसान के कुछ बुरे काम अच्छे अमाल की नाबूदी का बाइस बनते हैं। बेबसी के आलम में अपने पास खड़े दोनों बंदों फरिश्तों से कहा, कुछ तो करें आप, मेरे अमाल तो एक एक करके मिट रहे हैं। उन्होंने नाउमीदी के साथ अपनी बेबसी का इजहार किया और इनकार किया। एक के बाद, यानी ज़बान से इनकार नहीं किया, सर हिला के इनकार किया कि कुछ नहीं हो सकता। एक के बाद दूसरा वर्ग पलटा गया। नेक अमाल को भी देखता जा रहा था। मैंने बड़ी मेहनत से ये अमाल अंजाम दिए थे, लेकिन सब एक एक करके मेरी आंखों के सामने महव हो रहे थे। जहनी परेशानी ने घेर लिया था, अब तो बस गिरने ही वाला था। अपनी सारी मानवी दौलत को और उसकी तबाही को अपनी आंखों से देख रहा था। परेशान था, क्या करूं? मैंने तो मजाक किया था, उन्होंने संजीदगी दिखाई थी। मेरे सारे अच्छे काम मेरी फ़ाइल से गायब हो रहे हैं, वो सारे किसी और की फ़ाइल में लिखे जा रहे हैं। एक और बात काबिल गौर थी, मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, नमाज जमात, अज़ादारी और मेरे दूसरे अच्छे अमाल के सवाब में भी कमी आती जा रही थी। मेज़ के पीछे पीछे
बैठे जवान से पूछा कि इन दिनों मैंने सारी नमाज़ें जमात के साथ अदा की थीं, अज़ादारी में मुसलसल शिरकत करता रहा, फिर ये सब कुछ यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? उन्होंने मेरे चेहरे को गौर से देखा और कहा कि अच्छी तरह देख लें, उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे आमाल में दिखावा और रियाकारी भी बढ़ गई थी। पहले तो तुम खुलूस के साथ मस्जिद जाते थे और वहाँ जाकर इबादत इलाही में मसरूफ़ होते थे और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को याद करते थे, लेकिन फिर मस्जिद जाते थे ताकि लोग आपको देख लें कि आप मस्जिद में आए हैं। अज़ादारी में इसलिए शिरकत करते थे कि ताकि तुम्हारे दोस्त तुमसे ये ना कहें कि भाई तुम कहाँ गायब थे, यानी अब वो उनकी वजह से जाता था। अगर तुम्हारा काम खुदा के लिए था तो फिर तुम्हें ऐसी मस्जिद या इमाम बारगाह में या किसी अच्छी जगह पर जाने से किस चीज़ ने रोका था जिसमें तुम्हारे दोस्त नहीं जाते थे। तो अब नियत पे मैं इख्तिताम करूँगा कि और आमाल की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ होगा इससे डर रहे होंगे और कहेंगे अफसोस हम पर, ये कैसा अमाल नामा है, इसने कोई छोटी बड़ी बात नहीं छोड़ी मगर सबको महफूज किया हुआ था और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर ज्यादती और जुल्म नहीं करेगा। सूरह कहफ आयत नंबर 49। किताब की वर्क गर्दानी शुरू की। बहुत ही जी कीमत अमल को सफ़े के बिल्कुल ऊपर मोटे ख़त में लिखा गया था। एक सफ़े पर बहुत ही ज़ख़ीम तहरीर में लिखा हुआ था कि एक गरीब घराने की इमदाद। इसकी तफसील और वीडियो भी मौजूद थी। सच्ची बात तो यह है कि जहन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डालने के बावजूद मुझे याद नहीं आया कि मैंने किसी ऐसे घराने की कभी कोई मदद की हो। अलबत्ता जी तो चाहता था लेकिन जेब खाली थी। मैं उस घराने को जानता था, इनका घर हमारे पड़ोस में था और माली लिहाज से बहुत नादार थे। मेरा जी चाहता था कि इनकी मदद करूं, इसीलिए मैं एक दिन घर से निकला और सीधे बाज़ार गया। मेरे रिश्तेदारों में से 2 बंदों के पास जो वहाँ पे कारोबार करते थे उनके पास गया, जो बहुत सरवतमंद भी थे। मैंने इस गरीब घराने की मुश्किलात इनके सामने रखी और इनसे मदद की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। इनमें से एक ने तौहीन आमेज़ लहजे में मुझे पुकारा, ये तुम जैसे बच्चों का काम नहीं है, ये बुज़ुर्गों का काम करने का है। उस वक्त मैं 15 साल का था। इनके इस रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया और मैंने भी इस काम को छोड़ दिया। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि मेरे नामा-ए आमाल में जली हरूफ में लिखा था कि मैंने इस गरीब घराने की मदद की थी। जवान से पूछ बैठा, भाई मैंने तो इनकी कोई मदद नहीं की थी। जवाब में इसने कहा, तुमने उस नेक काम की नियत की थी और अपनी तरफ से कोशिश भी की थी। ये अलग बात है कि कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए तुम्हारी नियत और सही और तलाश व बसियार को तुम्हारे नाम-ए आमाल में लिख दिया गया है। तो नहजुल फसाह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मैंने बाद में देख ली थी। खुदावंद ताला का फरमान है कि जब मेरा बंदा नेक काम का इरादा करता है लेकिन अंजाम नहीं देता या अंजाम नहीं दे सकता, इसके नामा-ए आमाल में वो अमल सालेह के उन्वान से लिखा जाता है। यहाँ भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि बुरी नीयत को नहीं लिखा जाता। इसी तरीके से जो हमारे करामन कातिबीन हैं, जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, कि जब आप नेकी का इरादा करते हैं तो पहले ही वो लिख लेता है आपकी नेकी को, लेकिन जो बुरी बातें लिखने वाला फरिश्ता है वो उस वक्त लिखता है कि जब तक आप उस अंजाम को कर ना लें। कितना अल्लाह ताला हमारा रहीम है और हम कितने जालिम लोग हैं। किताब के अगले सफ़े पर बार बार मुशाहिदा किया कि मेरी नेक नियति को लिखा गया था और मुझे नेक अमल का सवाब मिला था। कई जगह पर देखा कि मेरी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेरे नामा-ए आमाल से नेक आमाल मिट चुके थे। ऐसी गलतियां जिनसे मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ था, यानी शोरबा भी नहीं पिया और मुंह भी जल गया। जितना जितना आगे बढ़ता गया नामा-ए आमाल खाली होता गया। सूरत हाल ने मुझे अफसरदा कर दिया और मेरे सामने कोई राह हल भी मौजूद नहीं था। सोच रहा था कि क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने गुनाहों का बोझ किसी और के कंधे पर डाल दूं और इसके अच्छे अमाल उससे ले लूं।
सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही थी। मेज़ वाले जवान ने बात आगे बढ़ाई कि अगर तुम्हारे आमाल में रियाकारी का शायबा भी हो, खुदा के नज़दीक इसकी कोई कीमत नहीं है। जिस अमल में खुदा के साथ किसी और को शरीक करार दिया जाए, वो इस अमल और इसी शिर्क की जानिब पलटा जाएगा। अपना खालिस अमल पेश करो ताकि तुम्हारा मसला हल किया जाए और मसला हल हो जाए। क्या तुमने नहीं सुना कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार नियत पर है। तो मेरे व्यूअर्स और मेरे बाशऊर व्यूअर्स, मेरे चाहे वो स्टूडेंट्स हों, यूथ हों, बहनें भाई, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, बच्चे हों, सब इसको सुने और देखें कि मौत का कोई लम्हा मुअय्यन नहीं है, किसी वक्त भी आ सकती है। हम ये छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ समझते हैं, ये हमारे लिए क़यामत के दिन जो है वो एक बहुत बड़ा आग का समंदर बन सकता है। और वो छोटी छोटी नेकियाँ कि जिन्हें हम मामूली समझते हैं, वो आपके लिए वहाँ चमन-ए-ज़ार बन सकता है और जन्नत में एक आला मकाम अता कर सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने तमाम व्यूवर से इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब की जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की और ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारे मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को जो लोग कमज़ोर करने पर तुले हुए हैं उनको नेस्त व नाबूद कर दे और इस पाक वतन को हमेशा महफूज फरमा। मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और जो फ़लस्तीन में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनको मेरे अल्लाह गैबी इमदाद अता फरमा। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी कल का सिलसिला ये जारी है मुसलसल, सुनिएगा नहीं, 4-5 इसकी जो है एक साथ होंगी इंशाअल्लाह। आप जो है वो हकीकतें सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे मेरी ज़बान से।